हाँ जी, समरी प्रोसीजर पे डिक्टेशन लिख लो। ठीक है, देखो ये जरा देख लेना एक बार, पता नहीं नोट किया होगा नहीं किया होगा, ये जो यहाँ स्टार लगे हुए हैं, ठीक है ना, इसकी पूरी हेडिंग पहले समरी प्रोसीजर ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस हिसाब से होती थी। ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओमिटेड कर दिया गया। ठीक है, कब? 77 में। ठीक है जी, बना ली हेडिंग, बना ली समरी प्रोसीजर। लिखो जी, ऑर्डर 37 प्रोवाइड्स फॉर अ समरी प्रोसीजर for certain cases, that is in the cases of recovery of specified sum of money, full stop, the very object behind the enactment of this order is to ensure an expeditious hearing and disposal of the suit, and to prevent unreasonable obstruction by the defendant who is having, comma डाल के डिफेंडेंट के बाद comma, who is having no defense, and of course to assist an expeditious disposal of the suit, since it would be useless for any court to conduct a trial as if the defendant does not have any plausible, PLAUSIBLE, plausible defense, BLE, full stop। एक पैराग्राफ अलग करो, देखो, that the provision of order 37 applies to High Court
comma city civil codes, comma courts of small causes and other superior courts, and applied upon following classes of suits. दो बिंदी डैश डाल के नीचे लिखो नंबर 1 suits based upon bill of exchange, comma hundies and हाँ जी देखो बेरख में लिखा हुआ ऑर्डर 37 में एच यू एन डी आई एस लिखो DIES and promissory notes. Full stop. Number 2, suits in which the plaintiff seeks to recover a debt or liquidated amount payable by the defendant with or without interest, arising out of, ठीक है ना, ऐसे जैसे ABC करके लिखना, ठीक है ना, अलग से वो मत बनाना, लिखो ए, आउट ऑफ के बाद दो बिंदी डैश कर लो और नीचे वाला लाइन में लिखो ए, a written contract, B, enactment where some sort is fixed sum of money other than penalty, C, on a guarantee where the claim against the principal is in respect of a debt or liquidated amount, ठीक है जी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा बनाओ, द कोर्ट्स mentioned above, comma before conducting a try under this order, comma will examine the defense with the defendant and also will examine whether the fact presented by defendants
are suggestive of some credible defense on the part of the defendant. Full stop. It is only if the court is satisfied regarding the plausibility of defense, then the court will grant the leave to defend. Defend, comma, the court may conduct the regular trial. Full stop. While deciding the plea, for leave to defend, the court ought not to decide as to who will succeed in the suit. Rather, it is only as to whether the defendant shall be allowed a right to prove his fact in the case. तो ये बिंदी और कॉमा लगाते हैं ना, वो लगा लेना इन द केस के बाद. एंड फॉर दैट पर्पस the court will not examine the court will not examine merits of the case, but it will only see the nature and weight of the fact presented by the defendant, and for that purposes it will be free to orally examine the defendant, and the court will also allow the
plaintiff to be the part of hearing, comma, however, comma, it will not record any formal evidence at this instant stage. केस का नाम लिखो, लिखो सुनील एंटरप्राइजेस वर्सेस एसबीआई कमर्शियल इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड। 1998 सुप्रीम कोर्ट। दो पेज छोड़ के। दूसरा केस लिखो, मिल्खी राम, MILKHI, मिल्खी राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चमनलाल एंड ब्रदर्स। 1965 सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली इसके अंदर सरकमस्टांसेस बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि किन सरकमस्टांसेस में एक नॉर्मल केस को जो है समरी सूट की जगह ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या करना होता है पार्टीज को, ठीक है। फैक्ट बताने ये कुछ भी नहीं है, मिसलेनियस, सीधी सिंपल सी बात है, मिसलेनियसनेस चेक करोगे आप, उसके बाद कोर्ट को सेटिस्फाई करोगे। क्यों कोर्ट को सेटिस्फाई करने के बावजूद, लेट्स से प्लेंटिफ ने कोर्ट को सेटिस्फाई कर भी दिया है, तो भी डिफेंडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकता है और ये कह सकता है कि जी मैं तो डिफेंस लूंगा, और अगर कोर्ट को डिफेंस लेना पड़ेगा तो फिर तो नॉर्मल ट्रायल चलेगा, फिर समरी से हटा लेंगे इसको, ठीक है ना। लिखो जरा, द कोर्ट हेल्ड दैट देयर आर 4 circumstances, where the court will allow the defense, दो बिंदु डैश लगाओ, नीचे लिखो नंबर 1, if the defendant is able to prove the fact that his fact is strong enough to a successful disposal of any suit in his favor, the court will allow defense for defendant अनकंडीशनली, अनकंडीशनली से पहले कोमा लगा लेना डिफेंडेंट के बाद, फुल स्टॉप। नंबर 2, even if facts presented by the defendant are not strong enough but proved to be credible, fair
reasonable, bona fide, trustworthy, and the court is also satisfied that the fact proved here is creating a triable issue between the plaintiff and defendant, then also the court will provide the unconditional defense to defendant. Full stop. Number 3. If by examining the fact the court believes that the defendant not succeeded even if he proves those facts but still it is in the interest of natural justice, the court is satisfied that at least a reasonable opportunity should be allowed to defendant. Full stop. However, in this circumstance, the court will impose a condition upon the defendant. Full stop. ठीक है, देख रहे हो एक ऑर्डर की तरह चल रहा है. अगर कोर्ट पूरे तरीके से सेटिस्फाई होगी, अनकंडीशनल डिफेंस अलाउ कर देगी. ठीक है जी. दूसरे के अंदर क्या है, अगर ट्रस्ट वर्दी भी कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना, कि हाँ भाई इसका डिफेंस जो ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है ना, कोर्ट को पता है कि भाई चले ना चले, उसके बारे में श्योर नहीं है कोर्ट. पहले पॉइंट में कोर्ट श्योर है कि भैया डिफेंस तो चलेगा इसका, ठीक है ना. दूसरे के अंदर श्योर नहीं, लेकिन ट्रस्ट वर्दी है ये, ठीक है, तो भी अनकंडीशन हो जाएगा. तीसरे के अंदर आपने क्या लिखा, तीसरे के अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि अगर डिफेंडेंट आकर ये बोल दे कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए आप प्लीज मेरा डिफेंस अलाउ कर दो, तो कोई बात नहीं, कंडीशन लगाएगी उसके ऊपर इंप्लाई कर देगी कोर्ट, ठीक है जी, और डिफेंस अलाउ कर देगी. नंबर 4, इफ द कोर्ट finds that the facts presented by defendant
is sham, 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 comma, illusory. In other words, facts presented by the defendant are not suggesting any kind of triable defense, comma, but the court is still having an opinion that for the completion of the justice, comma, it may allow the defense, full stop. एक लाइन छोड़ के लिखना, इन सच केसेस, पॉइंट में डालना, ठीक है ना। इन सच केसेस द कोर्ट may require a defendant to deposit the entire amount claimed by the defendant, by the plaintiff, sorry, by the plaintiff, or may require to deposit the amount partially, and in case of failure, court may not allow the defense. ठीक है जी, आ जाओ जरा पेरेक्ट पे आ जाओ। है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बेसिकली ये वो करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है इसकी, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग आधे घंटे की होगी। हाँ जी, सेक्शंस पे आ जाओ। कितने सेक्शन कर दिए हमने? 93 तक डन। इन बिटवीन सेक्शंस तक 93 तक इशू। ध्यान रखना, हमने एग्जीक्यूशन का एक भी सेक्शन नहीं किया है, ले देके एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूशन का, तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन जो है वो फिलहाल पेंडिंग है, उसके विषय में नहीं पूछ रहा हूं। अभी तक जितने सेक्शन हुए हैं, जितने ऑर्डर हुए हैं, डिक्टेशन केसेस, उसमें अगर कुछ पॉइंट है तो बताओ। नहीं सही, आज सेक्शंस पेंडिंग बचे हुए निपटा दें, बोलो चलो। देखो 93 तक हो गया, 93 पे आओ एक बार। देखो जी, ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 94,
94 95 प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट में पीटी और मेंस में मिसलेनियसली पूछ लिए जाते हैं। ठीक हो गया, डन। और बेसिकली क्या है, कई जगह लिंकिंग जाएगी इसकी, आज करवाना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ठीक हो गया, आज नहीं कराओ। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं छोड़ रहा हूं इसको, छोड़ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, डन। इसके बाद अपील देखो, अपील का सारा पोर्शन हमको बाद में निपटाना है। 112 तक अपील है आपकी, विजुलाइज कर रहे हो। 113 114 115 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, आगे आ जाओ। आओ, पार्ट 9 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर। सिर्फ हेडिंग से याद करना है आपने। सेक्शन 116 से लेकर 120 हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है इसके अंदर। सिंपल, ये कभी भी नहीं पूछा गया, ये पूछते नहीं है, ना प्रैक्टिस में काम आता है ना अदरवाइज काम आता है। क्यों? क्योंकि सिविल का प्रोसीजर है। सिविल में जो आपकी जितनी भी सिविल कोर्ट्स हैं, मे इट बी सिविल जज जूनियर डिवीजन, मे इट बी डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, सिविल कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज रहता है ना, ठीक है ना, ये अपने आप में हाई कोर्ट है। सेम पावर जो हाई कोर्ट के पास है वो सारी की सारी पावर इनके पास है। ले देके बस एक पेक्यूनरी जुरिडिक्शन रह जाता है। ठीक है जी, सिविल जज जूनियर डिवीजन का कम, ठीक है जी, डीजे का बहुत ज्यादा, हाई कोर्ट का अतः, अतः समझते हो ना, अथाह। सिंपल हो गया, बस ले देख यही फर्क है। एक सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठी है, जिसको लर्नेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रहे हैं, लोअर कोर्ट बोल रहे हैं हाई कोर्ट वाले, ठीक है जी, हाई कोर्ट के जुडिशरी, ठीक है ना, उसमें और हायर जुडिशरी ऑफ हाई कोर्ट में कोई फर्क नहीं है एज फार एज सिविल प्रोसीजर कंसर्न। ठीक है जी, ये सारा का सारा क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना, और सेक्शन 116 से लेकर 120 तक, बस खत्म। आगे आ जाओ, पार्ट 10 देख लो जरा। पार्ट 10 कहां से कहां तक है? 121 से 131 तक। आओ जरा, 121 इफेक्ट ऑफ रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल। द रूल्स, इस पे भी निकाल लेता हूं, आज सेक्शन आपको सारे करा देता हूं। आओ जरा, अगर स्क्रीन पे देखना है तो बड़ा करो उसको। आओ जी, इफेक्ट ऑफ रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल दिख रहा है ना स्क्रीन पे, अगर देखना चाह रहे हो। सिंपल, साथ साथ में याद करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट पार्ट आएगा आपका सेक्शंस का, सब्सटेंटिव पोर्शन का, वो ऐसा पोर्शन है कि इसको एक बार पढ़ोगे फिर पढ़ोगे नहीं इसको। ठीक हो गया, पढ़ो जरा। द रूल्स इन अ फर्स्ट शेड्यूल शैल हैव इफेक्ट एज इफ इनेक्टेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड अंटिल annulled or altered in accordance with the provision of this part। जब तक रूल्स के अंदर कुछ अल्टरेशन अमेंडमेंट वगैरह ना हो जाए, जो रूल्स लिखे हो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, जहां जहां पर सिविल प्रोसीजर की बात आएगी, मिसलेनियस है, सिर्फ इतना याद रखो। आओ जरा 122 पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। यस, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में किया था। ठीक है जी, जब सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ सीपीसी में अमेंडमेंट की बात आएगी तो कौन करेगा? कौन सा है सब्सटेंटिव पोर्शन? सेक्शंस। और जब रूल्स में अमेंडमेंट की बात आएगी तो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेजिस्लेशन कर सकता है, वो तो कर ही सकता है। ठीक हो गया, सिंपल है। 122 में क्या करें? 122 में बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है, सर्टेन हाई कोर्ट के पावर, क्या? रूल्स बनाने की। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके पास पावर है कि वो सुपरवाइज कर सकता है जितने भी कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है, उसके पास रूल्स बनाने की पावर है। आर्टिकल 227, ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट का 129, और एक और है, ऑक्सिलरी भी है।
ऑक्सिलरी जुडिक्शन भी है इसका 131। ठीक हो गया जी। आओ जरा हाई कोर्ट का देख लेते। हाई कोर्ट नोट बिंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर, जुडिशियल कमिश्नर की कोर्ट को छोड़कर may from time to time after previous publication, underline karo, after previous publication make rules regulating their own procedure, underline own procedure and the procedure for the civil courts, and के ऊपर प्लस लगा लो, procedure for the civil courts मिल गया, खुद के लिए खुद का प्रोसीजर और जितने भी सिविल कोर्ट हो उनका प्रोसीजर, सब्जेक्ट टू देयर सुपरिटेंडेंस, अपने सुपरिटेंडेंसी वाले जुरिडिक्शन में। ठीक होगा, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंसी जुरिस्डिक्शन कहां है, पंजाब और हरियाणा ओनली। ठीक होगा, जो 227 में लिखा हुआ। एंड मे बाय सच रूल्स annul, alter or add to all or any of the rules in the first schedule। ठीक है जी, ऐड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, जो कुछ भी लिखा हो फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, रूल्स है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक हो गया ना, चलो सही। जब प्रैक्टिस में जाओगे या आगे प्रिपरेशन में जाओगे, कहीं पर भी इंटरव्यू में पूछ लेगे फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, ऑर्डर मत बोलना, तो बोलोगे ऑर्डर्स हैं। ठीक है ना, कमेटी मेंबर देखेगा, अच्छा ठीक है जी, बोलना क्या है, रूल्स है। शेड्यूल फर्स्ट कंटेन्स रूल्स। ठीक है ना, रूल्स का क्या काम है वो बताएंगे कि जो जुरिस्डिक्शन सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ सीपीसी में लिखा है उसको एक्सरसाइज कैसे करना है, उसको एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक हो गया, चलो जी। 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स रूल कमेटीज इन सर्टेन स्टेट्स, छोड़ दो, सिर्फ हेडिंग से करो। 125 पे आ जाओ सीधा, पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। ध्यान रखो 122 में क्या है, सर्टेन हाई कोर्ट्स है। ठीक है जी, नॉट बीइंग द जुडिशियल कमिश्नर वाली हाई कोर्ट। 125 में क्या है, दूसरे बाकी बचे हुए हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अदर देन द कोर्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 122। 122 में लिखा उसके अलावा, may exercise the powers conferred by that section in such manner and subject to such condition as the state government may determine। जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कंडीशन को फॉलो करते हैं वो वाली हाई कोर्ट। provided that any such high court may after previous publication make a rule extending within the local limits of the jurisdiction any rules which have been made by any other high court। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, अगर लेट से 122 वाली हाई कोर्ट ने कोई रूल बना रखा है हरियाणा के लिए, ठीक है जी, और अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कोई रूल बनाना चाहे तो बेसिकली वो उसके लिए भी रूल बना सकती है यहाँ पे। ठीक है जी, फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई उस सर्टेन हाई कोर्ट ने भी रूल बना रखा है। ठीक हो गया, डन। यानी दो प्रकार की हाई कोर्ट जिक्र कर रहे हैं जब रूल्स बनाने की बात होती है, एक सर्टेन 122 वाली, एक 125 वाली। 125 में जनरल है। ठीक हो गया, दोनों ही रूल्स बना सकती हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं। ठीक हो गया, क्या अपने लिए बना सकते हैं रूल्स, हाँ हाई कोर्ट अपने लिए भी बना सकती है। ठीक हो गया, चलो जी। 127 के अंदर इन बनाए हुए रूल्स को पब्लिश कर देंगे, सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो बस। 128 की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पार्ट 11। 132 एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, वो पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपल है। अगर अगर कभी हेडिंग भी पढ़ी गई हो, पढ़ाई सॉरी पूछी गई हो किसी भी स्टेट में, तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया, डन। ये पूछा ही नहीं जाता है, और लोअर में तो, लोअर जुडिशरी के एग्जाम में तो कभी भी नहीं, भूल जाओ। हम एक आधी बार पढ़ते हैं जब लेट से कि अपने को जो है उधर छत्तीसगढ़ का पेपर देना होता है, तो इस पोर्शन में से आ जाता है। ठीक है ना, तो हम पढ़ते होते हैं। ठीक है, अपने को जरूरत नहीं, छोड़ दो। 132 एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, सर्टेन वुमेन्स को पर्सनल अपीयरेंस में से छूट दे रहे हैं। वुमन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड मैनर of the country ought not to be compelled to appear in public shall be exempt from personal appearance in the court। ठीक है ना, समझ गए क्या लिखा हुआ है, जो प्रथा के हिसाब से बाहर अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना, उनको हम नहीं मजबूर करेंगे। नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस। लेकिन हाँ,
जब एग्जीक्यूशन चलेगा तब कुछ बचाव नहीं है, तब अगर अरेस्ट होना है तो अरेस्ट हो जाएगी फिर वो लेडी भी। इन एनी केस इन विच द अरेस्ट ऑफ वुमन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस कोड, उन केसेस के अंदर, जिन केसेस के अंदर इस कोड ने वुमन के अरेस्ट पे रोक लगा रखी है, उन केसेस को छोड़कर। जब हम एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे वहां पर भी हम यही पढ़ेंगे, वुमन्स और बच्चों को कहां कहां पर अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, चलो जी। 133 एग्जम्पशन ऑफ अदर पर्सन, और दूसरे बंदे भी है जिनको एग्जम्प्ट कर रहे हैं पर्सनल अपीयरेंस से। सीधा आ जाओ, नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा लगेगा, महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहिबा हाजिर हो, समझ रहे हो? ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। Speaker of the State Legislative Assembly, the Chairman of the State Legislative Council, the Minister of the States, ये Minister of the States को अंडरलाइन करो, the Judges of the High Court, the person to whom Section 87B applies। 87 वाले कौन से पोर्शन थे? विजुलाइज करो अभी। ये एम्बेसडर एटसेट्रा वाला वो वाला पोर्शन आ गया। फॉरेनर ये, हाँ ठीक है जी, एम्बेसडर्स वाला आ गया क्वेश्चन। डन हो गया? चलो जी, अब कोई पूछ ले भाई प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर ले, इसका मतलब क्यों? कहा है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, ठीक है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द पर्सन टू होम 87B अप्लाइज, इनको हाँ अगर अरेस्ट करना हो तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ये वैसे अरेस्ट का नहीं, ये पर्सन अपीयरेंस का है। हाँ अरेस्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर 3, where any person claims the privileges of such exemption and it is consequently necessary to examine him by commission, he shall pay the cost of that commission unless the party requiring his evidence pays such cost। ठीक है जी, अब उसका एग्जामिनेशन होना है, जो बंदा एग्जामिशन लगा रहा है ऊपर वाले सेक्शन में, ठीक है ना, और वो क्या है ऊपर वाले सेक्शन का हवाला दे देता है, भाई मेरे को तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए मेरे को तो एग्जामिशन मिल ही जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, कमिश्नर चला जाएगा, लोकल कमिश्नर चला जाएगा उसके वाले एरिया में, ठीक है जी, और वहां पे आप रिपोर्ट करके एग्जामिनेशन ले आएगा, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? यही बंदा पे करेगा जो एग्जामिनेशन ले रहा है, जब तक कि जिस बंदे के भी आप पे लोकल कमिश्नर अपॉइंट नहीं हो रहा है वो तब तक फीस ना पे करे, ठीक है। चलिए देखो इस पोस्ट के, ये देखो कितना हाई ग्रेड डिग्निटी वाला कैडर है, ठीक है ना, दूसरी सामने वाली पार्टी को नहीं परेशान करते हैं बेसिकली, ठीक है। इनको क्या है, इनको एक लेटर लिखना है, लोकल कमिश्नर उसका खर्चा देना है, सरकारी पे करेगी, ठीक है ना, इमोल्यूमेंट्स वगैरह। चलो जी, चलो जी 134, अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55-57 छोड़ दो इसको, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, no judge, magistrate or other judicial officer shall be liable to arrest under civil process while going to presiding in or returning from his court। देखो जी, ये कह रहा है कि जजेस जो है वो अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उस समय ना तो वो कोर्ट जा रहे हो, ना कोर्ट में प्रेसाइडिंग हो एज अ जज, और ना ही कोर्ट से वो अपने घर आ रहे, यानी एग्जैक्टली जब तक वो जज है, ठीक है ना, सही। सुबेरे ये ना पीछे ना, इसमें अपना जज रहते हैं, ठीक है ना, ऑफिसर कॉलोनी में, सुबेरे सुबेरे निकला नहा धो के अपने घर के अंदर, ठीक है जी, ध्यान रखना अपने घर के अंदर क्या है, जज है, उनके अंदर तो जज दूसरा है, ठीक है ना, ठीक हो गया, सिंपल। जैसे ही गाड़ी में बैठेगा, लाल बत्ती, लाल बत्ती नीली बत्ती, टुई 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 टुई, जज बन चुका, हाँ बन चुका, ठीक है जी, जा रहा है, मुड़ा कोर्ट में पहुंचा, वहां से उतरा कोर्ट के अंदर,
कोर्ट के अंदर था जब, ठीक है जी, अपने ऑफिस में अपनी उसमें गया रिटायरिंग रूम में, उसके बाद चैम्बर में उसके क्या बोलते हैं अपने बेंच पे आके बैठ गया, जज है, यस। शाम को फिर वाइस वर्सा। इस समय गिरफ्तार नहीं करो, ये नहीं बोल रहे कि गिरफ्तार नहीं कर सकते, आराम से फुर्सत में गिरफ्तार करोगे, मतलब कहने। चलो, where any matter is pending before a tribunal having jurisdiction therein, or believing in good faith that it has such jurisdiction, the parties thereto, their pleaders, Muhtars, revenue agents and recognized agent and their witness acting in obedience to a summons shall be exempted from arrest। ठीक है जी, ये मुख्तार, मुख्तार पता क्या होता है? खबरी, ठीक होगा, खबरी को बोलते हैं मुख्तारी। इनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, शैल बी एग्जम्प्टेड, इनको भी एग्जम्पशन मिल जाएगी अरेस्ट से अंडर सिविल प्रोसेस अदर देन द प्रोसेस इशूड बाय सच ट्रिब्यूनल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्हाइल गोइंग टू और अटेंडिंग सच ट्रिब्यूनल फॉर पर्पस ऑफ सच मैटर एंड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम सच ट्रिब्यूनल। जब तक वो, जैसे कोई मुख्तार है, मुख्तार अपना काम कब करता है? बेसिकली जब वो संपर्क में आता है अथॉरिटी के, अगर वो मुख्तारी के उसमें है, रूप में है, ठीक है जी, मुख्तारी का काम कर रहा है, वो मुख्तार के रूप में फिलहाल है, उसको आप अरेस्ट नहीं करो। जब वो मुख्तारी का काम नहीं कर रहा तब उसको आप कर दो। रिकॉग्नाइज एजेंट जो जितने भी बंदे लिखे हुए अंडरलाइन करो जरा इनको। खबरी, देखो जरा, पार्टीज को अंडरलाइन कर लो, देयर प्लीडर्स को अंडरलाइन कर लो, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट, रिकॉग्नाइज एजेंट, सबको, देयर विटनेसेस, सबको अंडरलाइन कर लो, इनको अरेस्ट से एग्जम्पशन। Nothing in subsection 2 shall enable a judgment debtor to claim exemption from arrest under an order for immediate execution, for where such judgment debtor attends to show cause why he should not be committed to prison in execution to a decree। yes, judgment debtor जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो प्रोसीजर वगैरह चलता है, जैसे उसके पास एक पावर होती है, पावर के उसके पास एक राइट होता है, वो शो कोज दे सकता है कोर्ट को, देखो जी मेरे को अरेस्ट किस लिए नहीं करना चाहिए, देखो जी नंबर 1 मेरे को तो अरेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मान लिया मेरे खिलाफ देखो डिक्री आ गई, हु एम आई एम द जजमेंट डेटर, बट कोई बात नहीं है, मेरे को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको करके दिया मैंने जो भी आपने डिक्री में किया, ठीक है ना। जजमेंट डेटर को ले देके अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई वो एग्जीक्यूशन में बाधा डाल रहा है। अगर वो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि जी नहीं डालूंगा, मैं खुद आपको एग्जीक्यूट करके देता हूं, तो ठीक है भाई, इससे ज्यादा जल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपल हो गया। चलो 135 ए एग्जम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, ध्यान रखो बॉडीज आ चुका है, ठीक है ना। 133 और 135 में फर्क है। एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस इफ ही इज अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी during the continuance of any meeting of such house of parliament or as the case may be of the legislative assembly or the legislative council, या फिर if he is a member of any committee either house of parliament or the legislative assembly of a state or union territory or legislative council of a state during the continuance of any meeting of such committee, ठीक हो गया। if he is a member of either house of parliament or legislative assembly or legislative council of a state having both such houses during the continuance of joint sitting, underline कर लेना, meeting, underline, conference और joint committee, underline करते हुए चलना, of house of parliament or house of state legislature as the case में भी, जो भी केस हो, and during the 40 days, underline करो specifically 40 days before and after such meeting, sitting or conference, ठीक है ना। कोई सत्र वगैरह चलना है तो इस दौरान, सत्र के दौरान भी अरेस्ट वगैरह नहीं करेगा, सीधी सी बात। छोड़ दे 137 पे आ जाओ। ये बार बार पूछते हैं, लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, 137 पे स्टार्ट लगा। द लैंग्वेज which on the commencement of this code is the language of any court subordinate to the high court, so shall continue to be the language of such subordinate court until the state government otherwise directs। जब 1908 की जो लैंग्वेज थी, उस समय की जो कोर्ट की लैंग्वेज थी सबऑर्डिनेट कोर्ट की, वही लैंग्वेज अब रहेगी जब तक कि स्टेट चेंज ना करे। The state government may declare what shall be the language of any such court and in what character application to and proceedings in such court shall be written। Yes,
किसी स्टेट की लैंग्वेज कौन सी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट ही डिसाइड करता है। Where this court require or allows anything other than the recording of evidence to be done in writing in any such court, such writing may be in English. सीधी सिंपल सी बात है। But if any part or his pleader is unacquainted with English with the translation into the language of the court, ठीक है। देखो जी, जब कोई दिक्कत ना हो तो इंग्लिश में कर दो, लेकिन यूं है कि भाई पार्टीज को नहीं समझ में आती इंग्लिश, तो कोई बात नहीं, उनकी लैंग्वेज में कर दो। सिंपल है। चलो छोड़ दो 138। सिंपल हेडिंग पढ़ लो, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। देखो जी, जैसे ही हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो ध्यान रखना हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक है जी, सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट की क्या है? इंग्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है। एक बहुत फेमस वीडियो है, फेमस इन फेमस, गुजरात हाई कोर्ट का एक वीडियो दिखाया जाता है, ठीक है जी, जिसके अंदर एक गुजराती खड़ा होता है और वो गुजराती भाषा में अपना जो है पक्ष रख रहा होता है हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट जजेस दो बैठे होते हैं वहां पे, ठीक है जी। वो बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है जी। अब वो बोलता है कि भाई मुझे तो गुजराती के अलावा कुछ आती नहीं, एंड गुजराती पीपल उनका है, वो अवॉइड करते हैं इंग्लिश बोलना, ठीक है जी। वो लिटरली बेसिकली आप वहां पे देखोगे तो गुजराती और हिंदी में लिख देंगे। These people are definitely not like the Maharashtrian people कि भाई उनको हिंदी से दिक्कत है, वो हिंदी और गुजराती दोनों में लिखते हैं, बट इंग्लिश को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अब उसने बोल दिया मेरी तो भैया माँ बोली, मेरी तो माता जबान है, मैं तो यही बोलूंगा। अब कोर्ट जो है उसको बाहर निकाल देती है। बड़ा फेमस वीडियो देखना है, मिल जाएगा आपको यूट्यूब। ठीक हो गया? क्यों कर पाए वो ऐसा जजेस? ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर। सिंपल है। चलो 139, oath on affidavit by whom to be administered. In the case of any affidavit under this code, any court or magistrate या फिर any notary appointed under the Notaries Act 1952, or any officer or other person whom a high court may appoint in this behalf, any officer appointed by any other court which the state government has generally or specially empowered in this behalf may administer the oath to the deponent. बिल्कुल सही बात है जी। ये सारे के सारे जो है वो क्या कर देंगे? कसम खिलवा देंगे। किसको? डिपोनेंट को, जो शपथ करता है। बस याद रख लो इसको। सिंपल 140 में सिर्फ हेडिंग से असेसर्स इन कोजेज ऑफ सेल्वेज। सेल्वेज का मतलब होता है किसी भी वस्तु को खोने से या फिर खत्म होने से बचाना, उसको सेल्वेशन बोलते हैं। 142 orders and notices to be in writing. All orders and notices served on or given to any person under the provision of this code shall be in writing. छोटा सा स्टार लगा लेना। 143 postage where chargeable on a notice, summons or letters issued under this code and forwarded by post, and the fee for registering the same shall be paid within a time to be fixed before the communication is made. बिल्कुल सही बात है जी। Provided that the state government may remit such postage or fee or both or any prescribed scale of court fees to be levied in lieu thereof. बिल्कुल सही बात है जी। अब ये जो खर्चा है ये कोर्ट में भैया जमा कराना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस वहां पे क्या फ्री में काम होता है? तो ये खर्चा कोर्ट क्यों भरेगी? सिंपल हो गया। सिंपल, बस सीधी सिंपल सी बात है। जो खर्चा है भैया वो खर्चा है। हाँ, किन्हीं सर्टेन केसेस के अंदर ये काम फ्री में होगा, अगर बताना है तो स्टेट गवर्नमेंट बता देगी। सीधी सिंपल सी बात। 144 हो चुका है। वन 148 हो चुका है। Where any period is fixed for or granted by the court for doing of any act prescribed or allowed by this court, the court may in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total. ऑर्डर 17 में करवाया था, ठीक है जी। Even though the period originally fixed or granted may have expired. इसके ऊपर डिक्टेशन भी लिख चुके हो आप 148 पे, ठीक है ना। हाँ,
ये जैसे क्या बोलते हैं, समन के बाद WS फाइल करने का समय 90 दिन हो गया, ठीक है जी, 90 दिन के बाद 30 दिन और मिल सकते हैं, इसलिए हमने वहां पे 120 दिन पढ़ा था, ठीक हो गया। बट ध्यान रखना ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मंडेट नहीं है ये कि 148 की एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट मतलब टाइम देगा ही देगा ना, ऐसा जरूरी नहीं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन भी है, ये डिस्क्रिप्शन को अंडरलाइन जरूर कर लेना। नॉट एक्सीडिंग 30 डेज को अंडरलाइन कर लेना। 148A राइट टू लॉज कैविएट, स्टार लगा लो, फटाक से पूछ लेते हैं। देखो जी, कैविएट का मतलब होता है चेतावनी, सही, आपको मोटा मोटा बता देता हूं, सही। लेट से किसी पार्टी को शक है कि उसके खिलाफ केस आने वाला है सिविल, ठीक है। जब आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में प्रैक्टिस करोगे, तो ये जनरल प्रैक्टिस है वहां, क्योंकि दिल्ली में तो भाई साहब बहुत बड़े बड़े, मतलब क्या कहूं, मतलब टॉप आदमी बैठे हैं, ठीक है जी, तो वो इतनी हेडेक नहीं लेते, ठीक है जी। मान लो उन्होंने कोई बिजनेस वगैरह करना है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट बना देंगे, 2 मिनट में कंपनी खड़ी कर देते हैं दिल्ली के लोग, ठीक है ना। उन्होंने कंपनी बनाई, ठीक है जी, अब भैया जितना लीगल बड़ा मामला है ना, एक एडवोकेट अपॉइंट कर दिया, भाई तू देख, ठीक है जी। अब एडवोकेट के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, भैया इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को तो लगता है केस आने वाला है, तो कहाँ आएगा भाई, दिल्ली आएगा, तो कोई बात नहीं, जितनी कोर्ट में लगता है तो वो केस आएगा, तू क्या करो उन कोर्ट के अंदर ना कैविएट जाके फाइल कर, ठीक है ना। अब कैविएट का समय अवधि होती है, इतने समय तक के लिए कैविएट जो है वो एक्टिव रहती है, ठीक है ना, कि भाई 30 दिन 60 दिन 90 दिन हम पढ़ लेंगे उसके अंदर, ठीक है। इन बिटवीन यदि कोई केस आ गया, ठीक है ना, और कोर्ट को ये पता है भाई इसके लिए तो कैविएट आ चुकी है, तो क्या है, अब एक नेसेसरी नोटिस चला जाएगा उसको कोर्ट की तरफ से कि आ जा भाई, आ चुकी है तेरे खिलाफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इतनी ज्यादा भड़क नहीं लेते, सिविल का प्रोसीजर होता तो मिसलेनियस है, प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, वैसे वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब होता क्या है, कई कई बार पार्टी क्या करती है, एक्स पार्टी करवाने के लिए बड़ा छुपा के कहीं छोटा सा केस डाल दिया, फिर क्या है, सामान भी छुपा लिए, सामने वाली पार्टी को पता नहीं चलता, वो एक्स पार्टी हो जाता है, ठीक है जी। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छा वो बहुत जल्दी डिफेमेशन हो जाती है फिर इनकी कंपनीज की, इंस्टीट्यूशंस की, ठीक होगा। तो इस चीज में ना आए, इस तरीके के ओखड़ में सिर ना आए, तो एक क्या कर देते हैं, एक बंदा अपॉइंट कर दिया, वो क्या है, कैविएट डाल दे। बंदे की अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैं सिर्फ वो तो आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि कैविएट क्या होती है। कोर्ट से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जी आपकी कोर्ट में अगर कोई ऐसा केस आए तो हमको प्लीज आप चेतावनी दे देना, ठीक है ना, सिंपल। पढ़ लें फटाफट, आओ जरा। वेयर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड, एक्सपेक्टेशन है एप्लीकेशन की, और हैज बीन मेड या फिर बन गई हो, इन ए सूट और प्रोसीडिंग, किसी सूट में या फिर प्रोसीडिंग में, इंस्टीट्यूटेड में, सूट प्रोसीडिंग दोनों अंडरलाइन कर लो, और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड, या फिर वो होनी हो इंस्टीट्यूट, इन अ कोर्ट, कोर्ट के अंदर, इन एनी पर्सन क्लेमिंग राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कोई भी बंदा जो क्लेम कर रहा है कि उसका राइट है कि अपीयर बिफोर द कोर्ट हो सकता है वो, ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के लिए, मे लॉज अ कैविएट इन रिस्पेक्ट देयरऑफ, तो वो क्या कर देगा, लॉज कर देगा कैविएट। BNSS में FIR लॉज होती है, CPC में कैविएट लॉज होती है, याद करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। इन रिस्पेक्ट दे रहा हूं, जहां पर एक कैविएट जो है लॉज हो गई है अंडर सबसेक्शन 1, जो बंदा है जिसके द्वारा ये कैविएट लॉज करी गई है, हेरिन आफ्टर रेफर टू एज द कैविएटर, हम उसको कैविएटर बोलेंगे अब से, ठीक है जी। शैल सर्व अ नोटिस, उसको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, ऑफ द कैविएट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कैसे जाएगा, कैविएट का नोटिस जाएगा कैसे, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जिसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू रहेगी, ऑन द पर्सन बाय हुम द एप्लीकेशन हैज बीन मेड, ठीक है जी, उन बंदों के द्वारा जिसके द्वारा एप्लीकेशन बनाई गई, और इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड, या फिर एक्सपेक्टेड टू बी मेड हो जिनके द्वारा, अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है जी, सबसेक्शन 1 में। Where after a caveat has been lodged under subsection 1, any application is filed in any suit or proceeding, the court shall serve a notice of the application of the caveat. जैसे ही जिस केस के अंदर कैविएट डल चुकी है, अगर वो वाला केस आ जाता है, वो वाली एप्लीकेशन बन जाती है जिसकी एक्सपेक्टेशन चल रही थी, तो क्या है, उसी समय एक नोटिस इशू हो जाएगा, किसको, कैविएटर को। कैविएटर कौन है, जिसने कैविएट फाइल करी है, लॉज करी है। Where a notice of any caveat has been served on the applicant, he shall forthwith furnish the caveator at the caveator's expense with a copy of the application made by him, and also with copies of any paper or document which has been or may be filed by him in support of the application. बिल्कुल सही बात है जी।
Where a caveat has been lodged under subsection 1, such caveat shall not remain in force after the expiry of 90 days. Underline करो, underline shall not remain in force. नोट जरूर दिखना चाहिए आपको. कब तक? 90 दिन. फ्रॉम कब से? अंडरलाइन फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज लॉज्ड, लॉजिंग डेट से, unless the application referred to in subsection 1 has been made before the expiry of the said period. बिल्कुल सही बात है. लेट से 90 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना, और कंपनी का वो एडवोकेट बोल रहा है तो कुछ संभावना तो पूरी है, या फिर बॉस ने बोल दिया है कि नहीं ऐसे तो नहीं, कोई बात नहीं, 90 दिन खत्म हो रहे हैं, एक कैवेट और फाइल करो. ठीक हो गया? साहब, कैविएट का जिस दिन आपके माइंड में मतलब छप गया क्या? चेतावनी, क्या? नोटिस. सिंपल, आपको याद हो जाएगा. ठीक है जी. चलो 149, पावर टू मेक अप डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फी. ये भी पढ़ चुके हैं. 7/11 ज्यूरिसडिक्शन वाले में पढ़ा था, जब मैं आपको होमवर्क दे रहा था, ठीक है ना, कि बताओ जरा, अगर फीस ज्यादा आ जाए, कोर्ट फी ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, कोर्ट फी कम रह जाए तो क्या होगा. ठीक है, तब मैंने आपको ये पढ़ा था. आओ जरा फटाफट पढ़ लेते हैं. Where the whole or any part of any fee prescribed for any document by the law for the time being in force relating to the court fee has not been paid, the court may in its discretion at any stage, underline at any stage, allow the person by whom such fee is payable to pay the whole or part as the case may be, जो भी केस हो, of such court fee, and upon such payment the document in respect of which such fee is payable shall have the same force and effect as if such fee had been paid in the first instance. इसको अंडरलाइन कर लो. क्या इफेक्ट रहेगा इसका? ऐसे कि जैसे कि फर्स्ट इंस्टेंस पे जो है फी पे कर दी गई है. $150 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. जनरल होता है ट्रांसफर, और एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में बिजनेस ट्रांसफर होता रहता है. जैसे बीएनएसएस में क्या क्या होता था, थाने जो है वो ट्रांसफर होते रहते थे, जेएमएससी को थाना मजिस्ट्रेट, तो यहां पर भी ऐसी. ठीक है जी. 151, यस, सेविंग ऑफ इनहेरेंट powers of code. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. कौन सा सेक्शन था बीएनएसएस का? इनहेरेंट पावर वाला 528. ठीक है जी. बट ध्यान रखना, बीएनएसएस में वो स्पेसिफिक है, वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है. यहां पर चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, चाहे सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है जी, एडीजे डीजे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके पास सेम पावर है, एवरी सिविल कोर्ट. डन हो गया? जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो यहीं पर ऑब्जेक्टिव है. ठीक है जी. तो वो जो बीएनएसएस की डिक्टेशन है आपके पास होगी, ठीक है, उसको बस आपने रिवाइज करना है और होमवर्क ले जाओ, आधा पेज का इस पे लिख लेना. ठीक हो गया? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यहां पे लिखवाने. या फिर इसको रुक जाओ, पेंडिंग छोड़ देते हैं एक बार, मैं देख लेता हूँ उसको. अगर मेरे को लिखवाना है तो फिर मैं इस पे लिखवाऊंगा. सिंपल बताओ, बड़े ध्यान से सोच समझ के. हमारे पास कोई प्रोविजन है, ठीक है जी, जिसमें रेमेडी अवेलेबल है, जिसमें प्रोसीजर अवेलेबल है. क्या 151 में आएंगे हम? लेट से टेम्परेरी इंजंक्शन लगवानी है, क्या 151 में जाएंगे हम? नहीं जाएंगे. ठीक है जी. और दूसरे रिलीफ है जिनके लिए बेसिकली प्रोविजन अवेलेबल है, हम 151 में नहीं जाएंगे. हम 151 में कब जाते हैं? जब प्रोविजन नहीं होता तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, देखो जी आप अपनी दया दृष्टि दे दो अब तो.
ठीक है ना, प्रोविजन है नहीं, बट देखो हमारे साथ तो अन्याय हो गया। सिविल के अंदर बर्डन कैसा रहता है, स्टैंडर्ड कैसा रहता है, मियर प्रीपोनेंस और प्रॉपर्टीज, जैसे कोर्ट को पता लगेगा हाँ भाई केस तो बनता है तो कोई बात नहीं, न्याय उसमें मिल जाए, ठीक है ना। और सिविल में तो उनके पास पावर होती है, 2 मिनट में इक्विटी कोर्ट बना देंगे इसको, सीपीसी में नहीं मिलेगा तो सारे मिल जाएगा, समझ पा रहे हो ना, सही। लेट्स से अगर मैं ये लिख दूं, जैसे कि ये लिखा जाता है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी। तो इसका क्या मतलब है, फिर हमने अभी ये पढ़ा कि अगर प्रोविजन है तो फिर 151 का सहारा नहीं लेंगे। ध्यान रखना, जो प्रोविजन लिखा गया है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 151 को डाला गया कि देखो जी आप प्रोविजन और नॉन प्रोविजन दोनों में जाके ये पता करो कि क्या हमारे खिलाफ अन्याय हुआ, क्योंकि 39(1)(2) की जो एप्लीकेशन डलेगी वो 3 पॉइंट पे डलती है, प्राइमा फेसाई केस पे डलती है, ठीक है जी, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे डलती है, और इरिपेरेबल लॉस पे डलती है, तीनों पे, ठीक है जी। इरिपेरेबल लॉस देखना है तो वो तो कोर्ट को अपनी डिस्क्रिप्शन से देखना पड़ेगा। ये जो डिस्क्रिप्शन की पावर है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन, अता डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, ये 151 से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन जो 39(1)(2) में लगती है उसमें संपूर्ण न्याय मिल जाएगा उस कंसेप्ट का, ठीक हो गया। चलो होमवर्क ले लिया ना, चलो एक क्वेश्चन लिख लो फिर 151 पे, whether a civil court have power to order for DNA test अंडर सेक्शन 151 सीपीसी। पढ़ा हुआ आपने, डिक्टेशन भी लिखी हुई है पुराने बच्चों ने, ठीक है, तो प्रोविजन देखना पड़ेगा। टीबीएस से नहीं लगाओगे, टीबीएस से मत लिखना, ठीक है, वहां नहीं है, वहां सिर्फ रेफर करने के लिए बोल रहा हूं, उनके पास पावर नहीं है। डन हो गया, और जो सवाल पूछा है सिर्फ उसी के बारे में लिखना, ठीक हो गया। लिखना जरा इसके ऊपर पॉइंट लिखना। आओ जी 152, अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट्स डिक्री और ऑर्डर, देख चुके हैं हम, ये भी पढ़ चुके हैं। 122 में नहीं, इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था, डिक्री में पढ़ा था। क्लैरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक, क्लैरिकल कौन सी होती है मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक्स, हाँ यस, अरिथमेटिकल नंबर, मिस्टेक इन जजमेंट्स डिक्री और ऑर्डर, या फिर एरर्स अराइजिंग देयरिन फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, पढ़वाया था 2D में, पढ़वाया दो में पढ़ा। may at any time be corrected by the court either of its own motion or on the application of the parties। ठीक है जी। डिग्री का लास्ट क्वेश्चन था ये कि मान लो उसमें गलती हो जाए तो क्या करोगे, कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकती है, अच्छा कोई पार्टी एप्लीकेशन लगाए तो भी कर सकती है, डिग्री चेंज करने की बात नहीं हो रही। डिग्री के अंदर क्लैरिकल अरिथमेटिकल मिस्टेक, कोई स्लिप या फिर कोई ओमिशन है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, कभी डिग्री पूरी चेंज करवाने लग जाओ, ठीक है ना। केस तो प्लेंटी के फेवर में प्रोनाउंस किया जज साहब ने, लेकिन प्लेंटी की जगह गलती से बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो क्या डिफेंडेंट लिख दिया, पिक्चर चेंज कर दी जज साहब ने, ठीक है ना। तो जज साहब को एक बार अवगत करा दोगे।
हाँ उसमें क्या है? जजमेंट टू डिसाइड। हाँ जजमेंट का तो ऑर्डर वही है, सवाल क्या है उसमें? सर जो टाइपोग्राफिकल जो भी मिस्टेक्स आएंगे वो इसमें ही तो आएंगे, जजमेंट में मतलब साइन होगा हाँ ये जजमेंट और काम। डिग्री के विषय में लिखा हुआ है, डिग्री और ऑर्डर के विषय में लिखा हुआ है बस। 153 जनरल पावर टू अमेंड द कोर्ट में एट एनी टाइम एंड ऑन सच टर्म्स एज टू कोस्ट और अदरवाइज एज इट थिंक्स फिट अमेंड एनी डिफेक्ट, अंडरलाइन अमेंड एनी डिफेक्ट और एरर इन एनी प्रोसीडिंग द सूट, अंडरलाइन any proceedings in the suit, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue raised by or depending on such proceedings। बिल्कुल सही बात। डन। आज के बाद कभी भी जो भी अमेंडमेंट इंप्लीडमेंट और कुछ भी लिखोगे सेक्शन 153 का हवाला जरूर देना। ठीक हो गया? डन है। 153 का हवाला जब आप दोगे तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि एक एक्स्ट्रा प्रोविजन भी दे रहा है। 153 पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। हेडिंग से पढ़ लो, मतलब आपको पता ही है। 153 बी प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, बार बार पूछ लेते हैं। 153 बी the place in which any civil court is held for the purpose of trying any suit shall be deemed to be an open court to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them। ठीक है जी, क्या होता है वो उसको बोलते हैं ओपन कोर्ट। प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग जज में इफ थिंग्स फिट, उसको ठीक लगे ऑर्डर कर सकता है किसी भी स्टेज पे किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल के कोई पर्टिकुलर केस जो है दैट पब्लिक जनरली के जो जनरल पब्लिक है और या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है शैल नॉट हैव एक्सेस, उसका एक्सेस नहीं होगा इस कोर्ट के अंदर, वो नहीं आ सकता। टू बी रिमेन इन द रूम और बिल्डिंग यूज्ड बाय द कोर्ट, वो इस पूरे एरिया में नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? हालांकि ये कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। 153 बेस्ड 158 रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर रिपेल्ड इनेक्टमेंट। बस खत्म, सिर्फ हेडिंग से पढ़ो। ठीक हो गया? देखो जी इंपोर्टेंट कौन सा आपने पढ़ा? 158 पे ओ एच लिखो, ओनली हेडिंग ओ एच। ठीक है ना? ये कम से कम हेडिंग जरूर पढ़नी इनकी। ठीक है जी, स्टार लगाओ 153 बी पे, यानी जो पढ़ने का है उस पर टिक्का लगा लेना। टिक्का लगा सकते हो? चलो टिक्का लगा लो, स्टार लगा लेना 153 पे। 153 है, टिक्का लगाओ। 53 स्टार टिक्का। 152 151 स्टार लगाओ। 150 ओनली हेडिंग। 149 टिक्का लगाओ। 148 है स्टार। 148 स्टार। 147 पढ़ा हमने, देख लो जरा एक बार। consent or agreement by person under disability in all suits to which any person under disability is a party। वो डिसेबल बंदा पार्टी है। any consent or agreement as to any proceeding shall if given or made with the express leave of the court by the next friend or guardian for the suit have the same force and effect as if such person were under no disability and had given such consent or made such agreement। बिल्कुल सही बात है जी, जो भी एग्रीमेंट साइन करके कोर्ट की तरफ से आ गया है, ठीक है जी, पार्टी का आ गया है कोर्ट में, ठीक है जी, तो ऐसे समझ लिया जाएगा कि भैया उसने बिल्कुल कैपेबिलिटी में साइन किया इसको। बस सिंपल, एक रीडिंग ओनली हेडिंग। एक 144 पे स्टार लगाना है आपने। 143 रीड करना है। 142 पढ़ना है आपने। 140 ओनली हेडिंग। 139 पढ़ना है। 147 पढ़ना है, छोड़ दो 138 को। 136 को छोड़ दो। 135 ए, 135, 133, 132 सारे के सारे पढ़ने हैं। 127
125, 122, ठीक है ना। इतने पोर्शन में ही निशान लगाने की बेसिकली आवश्यकता है, बाकी तो सारे हमने अच्छे से पढ़ लिए। ठीक हो गया, सिंपल है। ये सारे के सारे जितने भी सेक्शन करवाए हैं, ठीक है जी। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है जी। मैं पानी पूनी डाल के लाता हूं, इसको थोड़ा सा डिस्पोज अप कराऊं, ठीक है जी। ये सारे के सारे सेक्शन करके मेरे को सुनाओ और छुट्टी कर लो, जाओ। ठीक हो गया। माइलस्टोन भी यहीं पे बनाते, ठीक है जी। अरे अभी करवाता हूँ, फिर ले लेना, कोई बात नहीं, सुना देना, ठीक है ना। देखो जी, कहां से शुरू करा था हमने? 121 से करा है। सबसे पहला सेक्शन हमने 121 किया है, ठीक है जी। जनरल पढ़ना पढ़ लेना, वरना माइलस्टोन 122 है। 122 में कौन सी सर्टेन कोड्स है, ठीक हो गया जी। हाँ, अरे ठीक हो गया जी, सर्टेन हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद 125 सिर्फ माइलस्टोन माइलस्टोन करो, ठीक है ना। फिर 127 में पब्लिकेशन आ गया, ठीक है जी। फिर इसके बाद सीधा 132 पे आ जाओ, एग्जाम्पशन है जी, ये क्या एग्जाम्पशन वुमन वाली 132 में, ठीक हो गया। चलो, याद करने के लिए 13 साल की 2 महिलाएं या 32 साल की 1 महिला है, याद कर लेना। 133 में अदरवाइज देन, ठीक है जी। चलो सही। फिर आ जाओ 134 में अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सही। फिर 135 में एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, ठीक है जी। फिर 135 ए एग्जाम्पशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। ए फॉर याद करने के लिए 135 ए असेंबलीज, ठीक हो गया। फिर सीधा 137 माइलस्टोन बनाना ही बनाना। आपके माइलस्टोन में सीपीसी के लास्ट वाले माइलस्टोन में ताजमहल की तरह होना चाहिए। लैंग्वेज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट बीएनएसएस में कहा मेंशन है, सीपीसी में कहां पर मेंशन, 2 मिनट पूछ लेते हैं। 137 याद रखना, ठीक है जी। 139 में ओथ्स और एफिडेविट्स, ठीक है जी। 140 में सिंपल एसेसर, 142 में ऑर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में रहेंगे, ठीक है जी। 143 में पोस्टेज का खर्चा वगैरह, 144 में रेस्टिट्यूशन, सबको पता है। 100 148 पे आ जाओ, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। 148 ए में कैविएट, याद कर लो। 148 ए में कोर्ट बोलेगी ए फॉर आ जाओ आ जाओ, बस याद करने के लिए, ठीक है जी। 149 माइलस्टोन होना चाहिए ये, ठीक है जी। डेफिशिएंसी कोर्ट फीस में अगर कुछ कमी पेशी है तो वो पूरी करवाने के लिए। फिर सीधा 150 में ट्रांसफर, 151 ये तो देखो छप ही जाना चाहिए 151 मिनट, सिंपल। फिर इसके बाद आ जाओ 152, ठीक है ना। ध्यान रखना, तीनों की बात हो रही है, जजमेंट डिक्री ऑर्डर तीनों की बात हो रही है। क्वेश्चन हो सकता है ये आ जाए कि भाई किस किस में जजमेंट ऑर्डर डिक्री, एक में, अलग अलग में, तीनों में, या इसमें से किसी में से, तीनों में, ध्यान रखना है। 153 फिर जनरल पावर अमेंडमेंट की, ठीक है जी। 153 बी में ओपन कोर्ट बोलेंगे, ठीक है। 153 बी को याद करो, ओपन कोर्ट किस हिसाब से कहोगे? 153 बी के नाम से, बी के नाम से बड़ी कोर्ट हो या फिर भारी भारी कोर्ट, बाहर कर सकते हो, ठीक है। जैसे देवा की अदालत के नाम से बी फॉर क्या कहूँ, बेवा क्या कहूँ, बीमा की, बीमा की अदालत, ठीक है जी। चलो बस हो गए, सिंपल लगे याद। जरा एक बार वो भी देख लो, जो कल हमने सेक्शन वाले पोर्शन निपटाए हैं वो भी देख लो जरा, वो भी रिवाइज हो जाएंगे। 75 से लेकर 78 तक लोकल कमिश्नर,
79 सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, 80 में नोटिस, 81 में एग्जाम्पशन है रेस्ट में, इन्हीं लोगों की, सरकारी बाबुओं की, ठीक है जी। 82 में एग्जीक्यूशन है, उसमें भी एग्जाम्पशन है, 3 महीने में, 3 महीना तो देंगे उसको डिग्री आ जाने के बावजूद भी, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं डालेंगे, ठीक है जी। 83 में एलियन है, ठीक है, वो कोई हॉलीवुड की मूवी का पोस्टर याद कर लो, 83 उसमें एलियन है, और एलियन को तो वैसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो चिंग 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 करके वो लाइट जला के उंगलियों में वो निकल जाते हैं बाहर, नहीं चिंग 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 इतना नहीं, अच्छे अच्छे एलियन है। हेडिंग से 85 पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन रूलर्स, ठीक है जी। 86 सिर्फ हेडिंग से सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनवॉयज। सतासी भी एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 85 एंड 86 की बात कर रहे हैं। 88 में इंटरप्लीडर, 89 में एडीआर, 90 में फ्रेंडली सूट, ठीक है ना, 91 में पब्लिक न्यूसेंस, 92 में पब्लिक चैरिटी, 93 में क्या आ गया, एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन, यानी ये केस न्यूसेंस वाले और चैरिटी वाले ये किस हिसाब से डलते, ये 93 में बता रहे, याद हो जाएगा, सही करोगे एक बार बंद करके, करो जरा। 75 से लेकर 78 कमीशन है, 75 से 78 लोकल कमीशन, ठीक है जी। 79 में बाय और अगेंस्ट सरकारी, 80 नोटिस, शाबाश। 81 एग्जाम्पशन है, ठीक है। 82 एग्जीक्यूशन में एग्जाम्पशन है, ठीक है जी। 83 में 83 एलियंस है, ठीक है जी। 85 में रिप्रेजेंटेटर, ठीक है ना, जो कोर्ट के अंदर इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद कौन सा किया था हमने, हमने वो किया तो है वो 86 किया हमने। ये जो रूलर्स है, फॉरेन रूलर्स है, ठीक है ना, याद कर लो 86 गढ़, याद हो सकता है। 83 में तो हमने छोड़ दिए, 83 तो हो गया ना एलियन वगैरह, ठीक है ना। 86 गढ़ के नाम से याद कर लेना, 86 गढ़ का के बादशाह जिले इलाही जो भी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाओ, हमने क्या किया था, 86 87 88 पे आ जाओ, छोड़ो छोड़ो 88 पे आ जाओ सीधा। इंटरप्रेटर कैसे भूल सकते हो, 888, ठीक है जी। 89 एडीआर कैसे भूल सकते हो, 90 फ्रेंडली सूट कैसे भूल सकते हो, 91 पब्लिक न्यूसेंस, 92 चैरिटी, और ये केस कैसे होंगे, 93 122 सर्टेन हाई कोर्ट की पावर, 125 नॉन सर्टेन हाई कोर्ट की पावर, ठीक है जी। 127 पब्लिकेशन, 132 वुमेन का एग्जाम्पशन, 32 साल की एक, 32 साल की महिला, ठीक है जी। 133 अदर पर्सन है, ये प्रेसिडेंट, 133 में प्रेसिडेंट कर लेना, ठीक है जी। और 134 में ठीक है, ठीक है जी। 135 में जजेस का एग्जाम्पशन, सही बात है जी। 135 ए है, ठीक है जी। असेंबलीज हो गई, ठीक है जी। फिर हमने किया है 137 लैंग्वेज, ठीक है जी। सिर्फ याद करने के लिए, हमारे देश में 137 लैंग्वेज है, सिर्फ याद करने के लिए, सीपीसी के हिसाब से 137 लैंग्वेज है, ठीक हो गया जी। फिर हमने कौन सा किया था, 139 बताओ जी क्या है, ओथ वगैरह है, ठीक है। देखो कुछ बंदे बता रखे हैं, जज बता रखा है, ओथ कमिश्नर बता रखा है, ये करवाते हैं, ठीक है ना। चलो जी,
फिर इसके बाद 142 बताओ जी। राइटिंग पोस्टेज छोड़ दो, राइटिंग 142 में और पोस्टेज 143 में। 144 नहीं भूलना चाहिए, रेस्टिट्यूशन। ठीक है जी, 144 भी है क्या? 144, 145, 46, 47। ठीक है, मिसलेनियस से छोड़ दो इनको, छोड़ दो 48, 148 है कैवियट। ठीक है जी, 149। deficiency of code fees. यस, डेफिशिएंसी ऑफ पोर्ट फी। ठीक है जी, 150, 150 की स्पीड से ट्रांसफर कर देंगे। 151 इनहेरेंट पावर। ठीक है जी, 152 अमेंडमेंट। ठीक है ना? यस, और क्या बोलते हैं उसको, 152 में अमेंडमेंट। हाँ ठीक है। 153 जनरल पावर टू अमेंड। यस, सही बात है, वेरी गुड। ठीक है, 153 हो गया। और भी है क्या? 155 कुछ नहीं कराया था क्या? हाँ, 153A। ठीक है जी, 153B ओपन कोड। ठीक है जी, ये लो जी, ये खत्म हो गया आपका। बस 158 बस याद कर लेना, रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड रिपील्ड इनएक्टमेंट्स। ठीक हो गया, सारा का सारा याद हो जाएगा बिल्कुल, और बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है जी, देखो जरा कल जो है हमने कितने ऑर्डर कर लिए हैं अभी तक? इन बिटवीन भी तो निपटा लिया हमने। देखो जी, बी से तक सारे के सारे हो चुके हैं। ठीक है जी, ध्यान रखो। अब ये जो है अपील से पहले जितने ये ऑर्डर पेंडिंग है वो कराऊंगा मैं। ठीक है जी, जिनके ऊपर डिक्टेशन लिखनी है उसके ऊपर डिक्टेशन लिखेंगे, जिसके ऊपर डिक्टेशन नहीं लिखनी, ठीक है जी, उसको हम पढ़ेंगे। सिंपल रहेगा, सही। आपका आने वाले हफ्ते में आपका अपील शुरू हो जाएगा। जिस दिन अपील हो जाए यूं समझ लेना कि 3 से 4 दिन में सिर्फ एग्जीक्यूशन रह जाएगा, क्योंकि एक बार अपील शुरू हुआ, अपील के साथ में रेफरेंस, अपील के साथ में रिवीजन रिव्यू, इसी के साथ में पढ़ेंगे। इकट्ठा ही पढ़ोगे, बाकी सारी की सारी सीपीसी आप कर चुके। ठीक है जी, ये अपना निपटाओ अगले हफ्ते। ठीक है जी, उससे पहले दिवाली से पहले खत्म कर लो, छुट्टी कर लो दिवाली की। ठीक है जी, हफ्ते भर की छुट्टियां कर लो। ठीक है जी, उसके बाद मेरे को बढ़िया सा पेपर दे दो। ठीक है, इस बार मैं सीपीसी का मेंस भी लूंगा। ठीक हो गया, कई बच्चे तो जाने वाले, एक बार खुद को चेक तो कर लो। सिंपल हो गया, डन। चलो, जैसे कि हम शुरू करेंगे, कल हम शुरू करेंगे ऑर्डर 22। देख लो, डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी से। ठीक हो गया जी, फिर विड्रॉल कराऊंगा, फिर ये पेमेंट इनटू कोड पढ़ने का है, सिक्योरिटी को कॉस्ट पढ़ने का है। ठीक है जी, 26 में कमीशन हम पढ़ चुके हैं। ना, पढ़वाया नहीं, रेफरेंस जरूर आया है। हाँ, 23 का 1 और 23 का 3 है या 2 है, वो करवा, वो किया बस। ये पूरा का पूरा ऑर्डर पढ़ना है। कई ऑर्डर ऐसे आएंगे जो सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है ना, ऐसे भी ऑर्डर आएंगे सारे के सारे ऑर्डर पढ़ने, लेकिन डिक्टेशन एक भी नहीं। ठीक हो गया, यहां से शुरू हो जाएंगे। सूट बाय और अगेंस्ट दी ऑफिशियल कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है जी। ये 79 के साथ वाला है, इसको पढ़ लेंगे। ये सारा का सारा निपटाएंगे भैया। कोई ऑर्डर छोड़ने वाला भी है ना? छोड़ने वाला एक भी ऑर्डर नहीं है, पढ़ाई का तो सारे के सारे। हाँ, यूं है कि खुशी की बात है कि कई ऑर्डर बीच में से हम पढ़ चुके हैं। ठीक रहेगा जी, चलो जाओ जी, छुट्टी करो।